Namaskar. Myself, Dr. Sneh Kumar Mishra, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture of research methodology. Today, we are discussing about major steps in social research. It is part 1. Next part we will discuss on our next lecture. Today we are discussing about first 5 steps of social research. So you can see I have described the steps of social research. The first step is election of a research topic or problem. Election of a research topic or problem. The second step is review of concerned literature. Review of concerned literature. In it, we can observe thesis review and book review in review of concerned literature. The third step is describe the sociological importance of the topic. Describe the sociological importance of the topic. The fourth step is formation of objectives of research. Formation of objectives of research. And the fifth step is formation of hypothesis. The fifth step is formation of hypothesis. So, I am describing each step in detail. Please try to understand and concentrate. You will know more information about the steps of social research. So, you know what is social research. We have described it in our previous lectures, previous classes. We have go into detail about what is social research. We have discussed about research design, many kind of research design. We have discussed about the types of social research. So now you know many things about social research and research methodology in social research. So we are continuing step by step. We are drowning deep into social research world. So with each lecture you will get more information and more perfection about social research. आज हम एक एक चरण को, एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे. पहला है इलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक और प्रॉब्लम. सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेप होता है, the most important step is how to elect a research problem or a research topic for social research. आप जानते हैं कि social structure is very vast, social system is very vast. So to choose a topic for your research problem which is worth for research, which is worth for your social research, which is worth in the world of social research, it is a complex problem and it is a challenge also for a scholar. How to choose appropriate and a good research topic for their research work. तो इसके लिए आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपको जो सामाजिक शोध होते हैं उनकी प्रकृति को समझना होगा, उनके नेचर को समझना होगा कि हम किन टॉपिक्स पर सोशल रिसर्च करते हैं या कर सकते हैं. देखिए, आपको ऐसा टॉपिक लेना होता है जो सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का हो, सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का हो, सामाजिक उपयोगिता का हो. ये दोनों के लिए है, ये सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी है और सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए भी है. तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो टॉपिक हो वो सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का हो, वो सामाजिक उपयोगिता का हो, उसकी सोशल यूटिलिटी हो. और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो है
समाज, हम जानते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां, भूमिकाएं, status and role, many kinds of social institutions, many kinds of social committees, many kinds of social communities, many kinds of rituals, folkways, and many other things are in our social structure and our social system. So, you know that social structure is a complex, highly complex and in order structure, highly complex in order structure. So there can be many research topics in this highly complex, well managed and in order arranged social structure. आपको उसमें से देखना होता है, निकालना होता है कि कौन सा टॉपिक है। और हम तो जान ही चुके हैं कि सभी प्रकार के सामाजिक शोधों का, सोशल रिसर्चेस का मेन जो लक्ष्य होता है वो ये जानना होता है, वो ये समझना होता है कि क्या उपयोगिता है इसकी सामाजिक संरचना को, सामाजिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए। So every kind of social research is for a better social structure, a better social system. हर सामाजिक शोध मजबूत करने के लिए है हमारी सामाजिक संरचना को और हमारी सामाजिक व्यवस्था को। ये आपको समझना है और आपका भी जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए सोशल रिसर्च करने के पीछे, कि आप सामाजिक संरचना को, सामाजिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके एज अ सोशल रिसर्च स्कॉलर। तो जब आप किसी शोध समस्या का निर्धारण कर रहे होते हैं, स्टेप 1, तो आपको ऐसी शोध समस्या लेनी चाहिए जिसका सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अभी हमने डिस्कस किया, और जो इस सामाजिक किसी न किसी वो जो आपका टॉपिक होगा किसी न किसी सामाजिक इकाई से जुड़ा होगा, सोशल यूनिट से जुड़ा होगा। वी नो द सोशल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सोशल यूनिट्स। तो ये किसी न किसी यूनिट से जुड़ा होगा, किसी न किसी पार्ट से जुड़ा होगा सोसाइटी के। तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का हो और पार्ट हो सोशल स्ट्रक्चर का, सोशल सिस्टम का। और हमारा उद्देश्य यही है, उस अध्ययन के द्वारा हम सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक संरचना को और बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसा कोई टॉपिक हमें देखना है, हमें चुनना है, ठीक है। तो इसमें मेरी अपनी पसंद या मेरे अपने पूर्वाग्रह या मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस नेशन से बिलोंग करता हूँ, इसमें से किसी प्रकार के पूर्वाग्रह जो हैं बीच में नहीं आने चाहिए। वरना जो बिकॉज सोशल रिसर्च इज अ साइंटिफिक रिसर्च, यू नो दैट, एंड द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज दैट इट्स ऑब्जेक्टिविटी। सो objectivity and high class objectivity is a must for social research. हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि हमारा शोध जो हो वो वैज्ञानिक हो। और वैज्ञानिक शोध से क्या तात्पर्य है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। वैज्ञानिक शोध जो होता है वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, उन्हीं चरणों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा काउंट के 3 स्तरों का नियम, काउंट के 3 स्तरों का नियम आपने पढ़ा होगा। और काउंट के 3 स्तरों के नियम में 3 प्रकार की जो होती है अध्ययन की पद्धतियां वो भी डिस्क्राइब हो जाती है। आपने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस काउंट का पढ़ा होगा। इसमें आपने देखा होगा कि पहले स्तर पे धार्मिक स्तर की चर्चा करते हैं वो, दूसरे स्तर पे तात्विक स्तर की वो चर्चा करते हैं काउंट, और तीसरे स्तर पे वैज्ञानिक स्तर की चर्चा करते हैं।
तो पहला स्टेप जो है वो उसमें मनुष्य जाति के जो सामाजिक विकास के साथ साथ और बौद्धिक विकास के साथ साथ जिस प्रकार के दृष्टिकोण अध्ययन के विकसित हुए उन्हीं स्टेप्स के बारे में कांट ने डिस्क्राइब किया था। तो जो पहला स्टेप था धार्मिक स्तर पर व्यक्ति जो था, जैसे प्राचीन काल में जो व्यक्ति रहा है वो हर चीजों के पीछे, हर प्रकार की सामाजिक घटनाओं के पीछे और हर प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कारण खोजने का प्रयास करता था धार्मिक तरह का। मतलब अगर पृथ्वी घूम रही है तो इसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति है, रात दिन हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति है, बाढ़ आ रही है तो इसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति है, तूफान आ रहे हैं तो इसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति है। जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, अच्छी हो या बुरी हो, उसके पीछे वो व्यक्ति जो है प्राचीन काल में यही कारण खोजने की कोशिश करता था कि कोई ना कोई धार्मिक कारण जो है वो छिपा हुआ है। तो ये पहला स्तर था कांट के अनुसार। दूसरे स्तर पर जो है तात्विक स्तर की चर्चा करते हैं। तो इस स्तर पर कांट के अनुसार जो है व्यक्ति थोड़ा सा लॉजिकल हुआ, रीजनिंग की उसमें कैपेबिलिटी आई, विकसित की उसने धीरे धीरे, और अब वो हर चीजों के पीछे दैवी शक्तियों को जिम्मेदार ठहराने की जो मानसिकता थी उससे थोड़ा ऊपर उठ के कार्य कारण संबंध जानने के लिए वो प्रेरित हुआ। कार्य कारण संबंध क्या होते हैं, कॉज एंड एक्शन रिलेशन क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछली कक्षाओं में इसे समझ चुके हैं। तो कॉज एंड एक्शन रिलेशन जानने के लिए वो प्रेरित हुआ। और लॉजिकल अप्रोच, व्हाट इज लॉजिकल अप्रोच? लॉजिकल अप्रोच इज अ मेंटल अप्रोच टू नो द रियलिटी ऑफ समथिंग। It is a mental approach. It is not an experimental approach. The scientific approach is an experimental approach. We have to experiment first, and then we can believe in the result. Experiment based truth is a scientific approach, and logical approach is a mental approach to know the reality. इसलिए तर्क जो होता है वो एक सीमा तक तो ठीक है, परंतु एक सीमा के बाद तर्क जो है वो अधूरा हो जाता है। किस प्रकार से अधूरा हो जाता है? इसलिए अधूरा हो जाता है क्योंकि तर्क के पास परीक्षण की क्षमता नहीं है, प्रयोग की क्षमता नहीं है। प्रयोग और परीक्षण के लिए एक्सपेरिमेंट करना होता है, और ये एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाग है। फॉर एग्जाम्पल, आदिकाल से जो है, जैसे धर्म के विकास के बाद थीस्ट एंड एथीस्ट, आस्तिक और नास्तिक, ये दोनों अप्रोचेस रही हैं समझने के लिए। अब आस्तिकों के अपने तर्क हैं ईश्वर के संबंध में, नास्तिकों के अपने तर्क हैं ईश्वर के संदर्भ में। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, और ये विवाद तब से जारी है। ये विवाद अभी भी चल रहा है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्रीज जो हैं वो एथिस्ट हैं। कुछ कंट्रीज हैं जैसे लाइक इंडिया, हम जो है नास्तिक देश में निवास करते हैं। तो हमारे दृष्टिकोण उस प्रकार के, जिस समाज में आप जन्म लेंगे उस समाज की आइडियोलॉजी, उस समाज की कंडीशनिंग आपका हिस्सा बन जाती है, और उसी के अनुसार आप सोचते हैं और कार्य करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से a man is just a social product according to its culture and circumstances. A man is a social product. You and me, we are all social product. We are the representative of our culture. The culture in which we have born, in culture in which we have conditioned, in culture in which we are conditioning the culture itself with our deeds and ideologies. So, तात्विक दृष्टिकोण में, लॉजिकल अप्रोच में जो है एक सीमा होती है।
वो सीमा प्रयोग के अभाव के कारण है। इस कमी को दूर करने के लिए ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का साइंटिफिक अप्रोच का विकास हुआ। और जो साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच में प्रयोग सिद्ध निष्कर्ष पर भरोसा किया जाता है, कार्यकारिणी संबंधों को खोजने का प्रयास किया जाता है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड ट्रूथ एंड एक्शन कॉज रिलेशन आर द टू मेजर प्रोसेसेस ऑफ साइंटिफिक स्टडी मेथड। ये जो साइंटिफिक स्टडी मेथड है, इसका यूज करके हम प्रयोग सिद्ध निष्कर्ष जानने का प्रयास करते हैं और प्रयोग सिद्ध निष्कर्ष पे भरोसा सभी करें। जैसे जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प बनना प्रारंभ होता है, इट इज अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। यू कैन अप्लाई इट, यू कैन एक्सपेरिमेंट इट, एंड विथ योर एक्सपेरिमेंट यू हैव टू बिलीव इन इट। It is not a hypothesis of any kind, it is not a ideology, it is not a religious statement, it is not a philosophical statement, it is the existential truth, and you can experiment it and experience it. With experiment you can experience it. Okay, so इन 3 स्तरों की बात की काउंट ने, और ये 3 स्तर जो हैं 3 प्रकार की अध्ययन पद्धति को भी डिस्क्राइब करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। पहली अध्ययन पद्धति है बिलीफ पे बेस्ड है, विश्वास पे आधारित है, विश्वास कर लेना, चाहे दैवी शक्ति पर हो या शैतानी शक्ति पर हो। और इस प्रकार के अप्रोच वाले लोग आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे, वो बिलीव कर लेते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते, एक्सपेरिमेंट तो करते ही नहीं, वो बिलीव करने पे भरोसा करते हैं। और पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसा चलता है। फिर कुछ लोग ऐसे तार्किक प्रवृत्ति के जो होते हैं, लॉजिकल अप्रोच को मानने वाले लोग, वो डायरेक्ट बिलीव नहीं करते, ब्लाइंड बिलीव नहीं करते, वो तर्क वितर्क करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, मेंटल अप्रोच लगाएंगे, उसके बाद ही किसी चीज पे भरोसा करेंगे। साइंटिफिक अप्रोच इन सबसे बढ़ के अध्ययन का तीसरा दृष्टिकोण, सबसे विकसित दृष्टिकोण साइंटिफिक अप्रोच में। और इसी साइंटिफिक अप्रोच का प्रयोग हम सोशल रिसर्च में करते हैं, यू नो दैट। तो साइंटिफिक अप्रोच में हम प्रयोग सिद्ध निष्कर्ष और कार्यकारिणी संबंधों के द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरते हुए प्रयोग करते हैं और किसी चीज की वास्तविकता को, रियलिटी को, ट्रुथ को जानने का प्रयास करते हैं। ये स्टेप्स हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आपका रिसर्च टॉपिक होगा वो साइंटिफिक अप्रोच, आपकी साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा निकला हुआ होना चाहिए। ओके, उसका सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और आगे इसे समझे हम। आपके रिसर्च टॉपिक पे आपसे पहले कितने वर्क हुए हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। और सोशल रिसर्च जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि आपके टॉपिक पे आपके पहले कितने रिसर्च हुए हैं ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि यदि आपके टॉपिक में ऑलरेडी काफी काम हो चुका है और अधिक काम उसमें होने की और अधिक प्रकाश उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आपके रिसर्च की क्या उपयोगिता रह जाएगी, क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगा, क्या रिलेवेंस रह जाएगा, है ना। तो ये आपको समझना होता है और इसे जांचना होगा, इसे परखना होगा कि मेरे रिसर्च टॉपिक पे, जिस रिसर्च टॉपिक को लेकर के मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, मुझसे पहले कितने जो है विद्वान रहे हैं, उन्होंने इस पे वर्क किया है, कितने स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने इस पे स्टडी की है। ओके, और यदि आपके टॉपिक पे पहले भी स्टडी हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टडी नहीं कर सकते। अगर एक निश्चित टाइम पीरियड का गैप है तो एक तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने बेरोजगारी का अध्ययन किया है, अनएम्प्लॉयमेंट का अध्ययन किया है, तो जरूरी नहीं है कि उसी एरिया में किया होगा जिस एरिया में आप अध्ययन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए उस एरिया में अध्ययन हो भी गया, ठीक है, तो कुछ अगर अंतर है, मान लीजिए 10-15 साल का अंतर है, 10-15 साल में तो पूरी जनरेशन का जो है माइंड सेटअप बदल जाता है, बहुत सारी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो 10-15 साल में यदि अंतर है तो आप रिसर्च कर सकते हैं, दोबारा उसी रिसर्च को कर सकते हैं, उसी एरिया में, सेम टॉपिक सेम एरिया,
आप उसी रिसर्च को रिपीट कर सकते हैं. इफ द टाइम पीरियड इज ऑफ 5 to 10 years gap, you can do the same research, repeat. ओके. और इसके पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एरिया का अंतर हो सकता है. मैंने यहाँ किया है, दुर्ग जिले में किया है, दुर्ग जिले के 3 गांव में किया है, आपने दुर्ग शहर में कर लिया, या किसी और विकास खंड में कर लिया, या 2-3 विकास खंड को मिला के आपने अध्ययन कर लिया, या किसी दूसरे जिले को ले लिया. Our social structure is so vast, our nation is so vast, and social research is quantitative and qualitative, both kind of qualities in it, quantitative and qualitative, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार की जो है संभावनाओं को लिए हुए होता है सामाजिक अनुसंधान जो है. तो आप इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स जो हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च की क्वालिटीज़ को पूरा करते हैं, डिमांड्स को पूरा करते हैं, उन टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं. आपके पास सुविधा है, पर आपको अपने निजी संसाधन भी देखने होते हैं, अपनी सीमाओं को भी देखना होता है. उसके अकॉर्डिंगली ही आप टॉपिक चूज कर पाते हैं. यू नो दैट. और आपको ऐसे ही करना है आगे आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें. तो मेरे ख्याल से इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, आई हैव ट्राइड टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब दिस फर्स्ट स्टेप. आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि इलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक और प्रॉब्लम कैसे इस स्टेप में हमें रिसर्च टॉपिक का चुनाव करना होता है. आगे और हम इस पे डिस्कस करेंगे. अभी हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो है हर स्टेप्स को समझने का प्रयास करना, जितने स्टेप्स हम आज दिए. दूसरा स्टेप है रिव्यू ऑफ कंसर्न लिटरेचर. आपके शोध विषय के संबंध में या आपके शोध विषय से सिमिलर टॉपिक पे जितने भी रिसर्च पहले हो चुके हैं वो, और जितने भी बुक्स लिखी जा चुकी हैं वो आपको खोजना होता है, आपको उनका रिव्यू करना होता है. और उनका रिव्यू जब आप करेंगे उसी आधार पे आपको पता चलेगा कि आपके रिसर्च टॉपिक पे पहले कितने लोगों ने कितना काम किया है और अब आपको क्या काम करना है. जो ऑलरेडी पहले काम हो चुका है वही काम करने की अब आपको जरूरत नहीं. जो छूट गया है, जो आपके पहले के स्कॉलर्स ने छोड़ दिया, उस काम पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है और आपकी रिसर्च की सफलता की संभावना ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो इसके लिए हम 2 प्रकार के रिव्यूज हमें देखने होते हैं. पहला है थीसिस रिव्यू और दूसरा है बुक रिव्यू. थीसिस रिव्यू में शोध ग्रंथ, रिसर्च की जो थीसिस होती हैं, आपसे पहले जितने लोगों ने रिसर्च की है उस टॉपिक पे, उस टॉपिक रिसर्च टॉपिक के ऊपर में जितने भी थीसिस पहले हो चुके हैं आपको उनका अध्ययन करना होता है और उसके बाद उसके रिव्यूज देने होते हैं. ठीक है. सेकंड स्टेप में बुक रिव्यू. बुक रिव्यू में आप देखेंगे कि कितनी पुस्तकें आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड पहले लिखी गई हैं. उन राइटर्स को आपको कोट करना होता है, उनकी बुक्स पढ़नी होती है, उनके रिव्यू लेने होते हैं. और इन रिव्यूज को इन 1 or 2 पैराग्राफ्स आपको अपने थीसिस में इंक्लूड भी करना होता है. इट इज मैंडेटरी. सो ये बुक रिव्यू और थीसिस रिव्यू दोनों जरूरी है. इसके अलावा आप रिसर्च पेपर, आपके टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर जो पहले लिखे जा चुके हैं, यू कैन इंक्लूड देम and you can include review of those research papers and also research articles and you can review of newspapers, magazines, articles also. It is secondary data for your research topic. तो इस तरह से इस सेकंड स्टेप को हमको डील करना होता है. I think you have understood it.
Third step, describe the sociological importance of the topic. You have to describe the sociological importance of your topic. क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है आपके टॉपिक का इन द वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क. यू हैव टू डिस्क्राइब इट. व्हाट इज द सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? किस तरह से आपको ये लगता है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क. क्योंकि इम्पॉर्टेंट होगा तभी ये रिसर्च करने के लायक है. तो आपको ये प्रकट करना होगा, आपको ये स्पष्ट करना होगा, आपको ये क्लैरिफाई करना होगा दैट योर रिसर्च टॉपिक इज अ वर्थ फॉर अ रिसर्च वर्क, फॉर अ PhD रिसर्च वर्क. You have to defend it and you have to collect the incident for it and the support for it to defend your topic. Okay. वैसे कुछ कमिटीज होती है, उन कमिटीज के सामने भी आपको अपने टॉपिक को डिफेंड करना होता है. तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि समाजशास्त्री महत्व क्या है. और आप जानते हैं कि समाजशास्त्री महत्व या सामाजिक महत्व आपके टॉपिक का कैसे हो सकता है. आपने ये पढ़ा है मास्टर्स में कि व्हाट आर द सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और व्हाट आर द सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ अ इशू और ऑफ अ टॉपिक. ओके, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. आपके जो शोध के उद्देश्य होंगे, आपके जो सोशल रिसर्च के उद्देश्य होंगे, उनके उद्देश्य क्या, किस प्रकार से आप निर्धारित करेंगे, उसके ऊपर है यह टॉपिक. सो देखिए, इसमें पूर्व के स्टेप्स का आपको ध्यान रखना होता है, पहले के स्टेप्स का ध्यान रखना होता है. You have review of literature, you have thesis review, you have book reviews, and in those reviews you have to find out which area is left for lightening in your research topic. जिन्हें दूसरों ने प्रकाशित नहीं किया है, जिन्हें दूसरों ने महत्व नहीं दिया है, आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड उन पक्षों को आपको उजागर करना है. और उन पक्षों को बेहतर तरीके से यदि आप उजागर कर पाते हैं देन योर रिसर्च वर्क इज सक्सेसफुल एंड इज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अदर एंड फॉर अदर स्कॉलर्स लाइक यू. इट विल बी हेल्पफुल एंड इट विल बी ऑफ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं. तो ये आपको देखना होगा और वही उद्देश्य आपको निर्धारित करने होंगे जिन पे पहले वर्क नहीं हुआ है, जिनको पहले हाईलाइट नहीं किया गया है. ये आप देख लें, ये आप जांच लें अच्छे से और उसके बाद उन्हीं के संबंध में आप उद्देश्य निर्धारित करें. और वो उद्देश्य 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ योर रिसर्च वर्क. 2 या 3 से अधिक उद्देश्य बनाने की, अध्ययन के उद्देश्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप अपने रिसर्च वर्क को लेंथी कर देंगे और आप अपने लिए ही जो है बहुत बड़ा टास्क ले लेंगे जिसे आप समय पे पूरा करना और मैनेज करना आपके लिए ही कठिन हो जाएगा. तो 2 या 3 से अधिक उद्देश्य बनाने की आवश्यकता नहीं होती. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप, द फिफ्थ स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस. वी हैव discussed previously about hypothesis, what is hypothesis and what is importance of a hypothesis for social research. और आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो आपके अध्ययन के उद्देश्य होंगे, अध्ययन के एक एक उद्देश्य से संबंधित आपकी एक एक कल्पना या परिकल्पना होगी. इफ यू हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स, यू हैव टू मेक 3 हाइपोथेसिस फॉर योर रिसर्च वर्क. ओके, एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस? वी आर डिस्कसिंग इट अगेन. हाइपोथेसिस ये एक संभावित निष्कर्ष होता है आपके रिसर्च वर्क का, संभावित निष्कर्ष जिसे आप सोच सकते हैं. और कैसे आप सोचेंगे इसे? यू हैव द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यू हैव थीसिस रिव्यू, यू हैव बुक रिव्यू, यू हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस वर्क फॉर योर रिसर्च टॉपिक. उसके आधार पे आप ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना काम इस पे हो चुका है. आप सब कुछ जान चुके हैं, आपने डिस्क्राइब कर दिया कि व्हाट इज सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ योर टॉपिक. आपने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने रिसर्च के टॉपिक का या प्रॉब्लम का चुनाव किया है.
उसके बाद आप हाइपोथेसिस का निर्माण कर रहे हैं, तो ये पूरी कल्पना नहीं होगी, ये तथ्यों पर आधारित होगी, सटीक होगी, और जो भी संभावित निष्कर्ष आप निकालने का प्रयास करेंगे हाइपोथेसिस के द्वारा, वो जो निष्कर्ष है वो एक बेहतर क्वालिटी का होगा, पूरी कल्पना नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार के जो है पूर्वाग्रह सम्मिलित नहीं होंगे, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स सम्मिलित नहीं होंगे, और एक वैज्ञानिक उपकल्पना या परिकल्पना के जो क्राइटेरिया है उसको वो पूर्ण करेगा, जब आपने पहले के स्टेप्स को बेहतर तरीके से अंजाम दिया है उस कंडीशन में। सो इफ यू हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स, you have to make at least 3 hypotheses, and after hypothesis, after formation of objectives and hypothesis, the next step is your research works main methodology, अध्ययन विधि, उसे हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इन टॉपिक्स पर डिस्कस किया, और प्रत्येक चरण में किस प्रकार से हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है और किस प्रकार से हम परफेक्शन ला सकते हैं ईच स्टेप्स पे कंसंट्रेट करने के द्वारा, ये हमने समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज हमने जो डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।